Good morning, student. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. Any idea about the last lecture? Civil, mechanical, electrical, DC. Binomial distribution we have done last. Yes, very good. In last lecture, we have completed our binomial distribution. Okay, so you can see on your screen what is the binomial distribution and what we do in last lecture. Okay, so is it visible to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So in last lecture we have started 6.4. It is related to the probability distribution functions. Okay. And among them we already discussed binomial distribution. So you can see it all probability distribution functions require the random variable. So first we discuss about the random variable. There are two types of random variables, discrete random variables and continuous random variable. Then we also discuss both the random variables. Then we go for the first distribution, that is the binomial distribution, and the formula for the binomial distribution is probability of x is equal to x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x. And I also say that for this binomial distribution you have to identify total number of experiment, that means n, then success rate, that means p, okay, and q is the failure. So if you have these two things n and p, and from that n and p you will get your q, and whatever you want to find, then say it is your x, then from these four terms you will get your distribution. Okay, everybody, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you also discuss that these mean, variance and standard deviation will ask in your MCQ form. Okay, so NP, NPQ and root NPQ. And we done these all these examples for the binomial distribution. Everybody, is there any doubt, any question in binomial distribution? No, sir. No, sir. Okay, thank you. Next distribution is Poisson distribution. Okay, so Poisson distribution is nothing but the limiting form of the binomial distribution. तो यहाँ पे देखते हैं Poisson distribution. So it is a limiting Sir, case. screen is now visible. Okay. Okay. So it is limiting case of binomial distribution under the following conditions. So number one, the number of trials should be infinitely large. हम binomial में हमने क्या किया था, आपको याद है? तो यहाँ पे हमारा जो n था ना वो छोटा था. Yes or no? मीन्स Yes, sir. 10, यस Yes, 10, sir. n इज इक्वल टू 10 है, n इज इक्वल टू 5 है, देखो यहाँ पे. लेकिन जब n ज्यादा होता है देन यू हैव टू गो विद द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p, वहां पे हमने p लिया था सक्सेसिव को. फॉर ईच ट्रायल शुड बी वेरी स्मॉल, और जो p होगा ना वो स्मॉल होगा. दैट मीन्स वहां पे हमने क्या लिया था, तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे देखो p कैसा था, 0.6 है ना, 0.6, 0.10, 0. लेकिन इसमें थोड़ा इससे भी छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स 0.6 हो सकता है, 0.05 हो सकता है. ओके, तो इस टाइप का अगर आपका सक्सेस सही है देन यू कैन ऑल्सो डिस्कस योर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अंडरस्टैंड एवरीबडी? सेकंड कंडीशन. Yes. एंड थर्ड वन इज द फॉर्मूला. सो एनपी इज इक्वल टू लामड़ा, जहां पे हमने आगे एनपी लिया था उसको हम लामड़ा अगर बोलेंगे शुड बी फाइनाइट, मींस वो फाइनाइट होगा. देन मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर लामड़ा इज ए कांस्टेंट. तो यहाँ पे जो आपने देखा था मीन क्या था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एनपी था. तो जब एनपी इज इक्वल टू अगर आप लामड़ा ले लेते हो और अकॉर्डिंगली अगर लामड़ा आपका फाइनाइट हो जाता है then you can also talk about the Poisson distribution. Okay, everybody? So these three conditions define the Poisson distribution. Are you getting? Student, do you understand? Yes. Okay. Yes, sir. Next, the formula. So formula for Poisson distribution, if the probability of x is given by probability of x is equal to x is equal to e raised to minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial, and x will be 0, 1, 2, 3 and so on. Okay,
It is depends on the what we want to find, that is our x. So you can also say that ncx p raised to x q raised to n minus x, this is nothing but our binomial distribution. So binomial distribution का अगर आप limiting signs लेते हैं then we will get e raised to minus np, okay, into n p raised to x, because यहाँ पे lambda की जगह पे यही फॉर्मूला में हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, lambda is equal to np, then both are the same. Okay, understand? Yes, sir. Okay, and this is for the discrete distribution, means discrete type of random variable. So I mention here. And next, first example. So is there any doubt in this slide? First slide. Anybody? Any question? No, sir. Yes, please speak loudly. Okay, कुछ लोगों का तो आवाज ही नहीं पहुंच रहा है यहाँ पे, तो प्लीज स्पीक लाउडली. ओके, देन फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी. और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें पॉइजन होगा या बाइनोमियल, वो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ. तो यहाँ पे देखो, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटन पिन्स नोज दैट 5% ऑफ हिज प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव, मीन्स उन्होंने 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट है ऐसा यहाँ पे दिया है. इफ ही सेल्स कॉटन पिन्स इन boxes of 100 and guarantees that not more than 10 pins, ये repeat हो गया है यहाँ पे. yes, okay, then 10 pins will be defective, means उन्होंने गारंटी दिया है कि वो 10 pins जो है उससे ज्यादा यहाँ पे डिफेक्टिव नहीं हो सकता है. okay, so these both sentences are for the given data. And next one is what we want to find, what is the approximate probability that a box will fail to meet the guaranteed quality. Okay, so we want to find the approximate probability that a box will fail to meet the guaranteed quality. तो quality जो guaranteed है उसमें क्या हम मिस कर रहे हैं, okay, क्या फेल हो रहा है, वो आपको अप्रोक्सीमेटली प्रोबेबिलिटी उसके लिए फाइंड करना है. तो यहाँ पे आप देखो टोटल नंबर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट कितने हैं, यहाँ जो गिवन डेटा है उससे, यहाँ नीचे मत देखो, पहले इससे ही आप आइडेंटिफाई करो टोटल कितने इवेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं हम. 100. यहाँ से ही आपको पता चल गया है कि दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay? Yes, sir. तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 हो गया. नाउ सक्सेस रेट, तो यहाँ पे जो स्मॉल p है यहाँ पे 5% दिया है, तो 5% से अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो व्हाट वी गेट 0.05. दिस इज द सेकंड केस टू आइडेंटिफाई द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे देखो p भी बहुत स्मॉल हो गया, 0.05 मींस. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, सो यू हैव टू फाइंड लैम्बडा ओनली. जैसे आगे किया था ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे एक लैम्बडा टर्म जो है वो आपको अलग से फाइंड करना है. दैट मींस लैम्बडा इज इक्वल टू n इनटू p, दैट इज द मीन, इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इज इक्वल टू 5. तो अब लैम्बडा हमारा यहाँ पे नोन हो गया और वो थोड़ा रियल भी है, तो यहाँ पे 5 हो गया, तो वी कैन यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे उसके लिए देखो, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, x हमने रैंडम वेरिएबल लिया, व्हिच डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पिन्स इन अ बॉक्स ऑफ 100, मींस 100 बॉक्स में से जो डिफेक्टिव पिन्स है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने वेरिएबल को x बोला है. ओके, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ x डिफेक्टिव, स्मॉल x डिफेक्टिव पिन्स इन अ बॉक्स ऑफ 100, दैट इज द फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा रेज़ टू x अपॉन x फैक्टोरियल. यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे आपको 5 सब्स्टिट्यूट करना है, दैट मींस e रेज़ टू माइनस 5 रेज़ टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल. x की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू so on, क्योंकि 100 बॉक्स है ना तो कुछ भी हो सकता है. ओके, नाउ इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? एनीबॉडी? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. ओके, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे. अब ये इसको आइडेंटिफाई मींस इसको हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटी क्वालिटी. यहाँ पे उन्होंने गारंटी क्या दिया है कि अगर कोई बॉक्स है, देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है गारंटी दैट नॉट मोर देन 10 पिन्स विल बी डिफेक्टिव, मींस एक बॉक्स अगर आपने लिया उसमें 10 से ज्यादा डिफेक्टिव पीस नहीं होंगे, इसकी गारंटी है. तो उसको फेल करना मींस 10 से ज्यादा, यस और नो? Yes, sir. है ना?
फेल टू मीट मीन्स क्या हुआ, 10 तो उन्होंने गारंटी दिया है, अब वो गारंटी को तोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से बड़ा लेना पड़ेगा. दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रेटर देन 10 डिफेक्टिव पिंस. यस और नो एवरीबॉडी? यस सर. ओके तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10. अब x ग्रेटर देन 10 है, लेकिन मेरा जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे जाना है तो क्या करना है, मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 एंड सो ऑन. अगर मैं कोई कितना भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, लेकिन वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 ही हो सकता है कि नहीं? यस सर. ओके अब इसमें से अगर मैं ये जो छोटे 10 लेस और इक्वल टू 10 है ना, वो अगर मैं उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरा ये मिल जाएगा कि नहीं? यस और नो? तो मेरा काम थोड़ा इजी होगा. नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 11 टू 100 तक सभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसका एडिशन करो. दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. बट इससे उल्टा करना है मीन्स क्या करूं मैं, 1 में से लेस देन 10 वाला सब्सट्रैक्ट कर दूं तो चलेगा कि नहीं? यस सर. है ना, क्योंकि ये 19 फाइंड करने से ये 10 फाइंड करना इजी रहेगा, है ना. इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे हमने ये केस ले रहे हैं. तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10 इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन x इज इक्वल टू 0 टू 10. तो पहले x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करो, प्लस करके x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करो, प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस x इज इक्वल टू 3 करके सभी आपको 10 तक जाना है और उसको 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है. तो इफ यू गेट 1 माइनस दिस वन देन यू विल गेट 0.0137. सो यहाँ पे आपको 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, वो सब का आपको एडिशन करके 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देना है. दैट इज योर ग्रेटर देन 10 एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटी क्वालिटी. So is there any doubt in this example? Anybody? इसमें जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा? 0 फैक्टोरियल 1 होता है बेटा. ओके सर. Yes. If you have any doubt, then you can discuss with me. Please, everybody. Any question? नो सर. What about others? Please. No, sir, no question. Thank you, everybody. Now next. No, sir. Yes, thank you. सर ये जो समेशन है उसको हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन से बेटा इसमें नहीं होगा, पॉइजन और बाइनोमियल में नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल में हम करेंगे. देखना एक्सपोनेंशियल में इंटीग्रेशन आएगा. डन. क्योंकि ये तो बहुत लंबा जाएगा ना बात में. लंबा है लेकिन छोटा है ना बेटा, छोटा है. e रेस टू 0 5 रेस टू सॉरी e रेस टू -5. अगर फर्स्ट आप देखेंगे तो e रेस टू -5. ओके 5 रेस टू 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टर. तो आपको तो सिर्फ यहाँ ऊपर वाला ही फाइंड करना है, नीचे तो फैक्टोरियल ही है ना, वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. 1 फैक्टोरियल होगा तो 1 होगा, 0 फैक्टोरियल तो 1 है ना. e रेस टू -5 1 है यहाँ पे, और ये तो 5 रेस टू 0 1. इस तरीके से आप सभी जल्दी फाइंड कर सकते हो, उसमें इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है. ओके बट सर अगर हम इंटीग्रेशन लगाए तो प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, नहीं है कंटिन्यूअस होने की जरूरत नहीं है. यस यस, ये डिस्क्रीट डेटा है इसलिए हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. इसीलिए तो मैंने बोला ना कि बाइनोमियल एंड पॉइजन जो है उसमें हम इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे, बोला ना मैंने अभी, तो इसलिए तो बोला. और यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके डन. यस सर. ओके और सर यस यस यस, वो मीन और डेविएशन है, उसमें भी अगर हमें फंक्शन दिया है तो उसमें हम डेरिवेटिव कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस है. उस पीछे ना, पीछे के दो ना कंटिन्यूअस डेटा के लिए ना. यस सर. हाँ तो वो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें देखना. हम नेक्स्ट हमारा एक्सपोनेंशियल ही है, उसमें सीधा एक्सपोनेंशियल में इंटीग्रेशन ही करना है. ओके. पॉइजन में कुछ डाउट एनीबॉडी? Any problem? Please inform me, student. नो डाउट सर. Okay. Next example, you can see if 2% of light bulbs are defective, find the probability that number 1, at least one is defective.
एंड नंबर 2 एग्जैक्टली 7 आर डिफेक्टिव इन अ सैंपल ऑफ 100। तो यहाँ पे फिर से n कितना हो गया? 100. 100। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 हो गया और स्मॉल p में क्या लिख सकता हूँ? 2%। 2% भी 0.02। तो यहाँ पे देखो n बड़ा है, np बहुत छोटा है, देन वी कैन यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वहां पे हम क्यू फाइंड करते थे, यहाँ पे हमको लैम्बडा फाइंड करना है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू n इंटू पी करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 0.02, सो वी हैव 2। ओके, तो यहाँ पे 2 मिल गया है, तो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस लैम्बडा इन अवर formula. So we get let x be the random variable which denotes the number of defective bulbs in a sample of 100. So the probability of x defective pins in a sample of 100 will be probability of x is equal to e raised to minus lambda raised to x divided by x factorial इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमको क्या बोला गया यहाँ पे, यस लैम्बडा इज इक्वल टू 2 है, तो e रेज टू माइनस 2 5 रेज टू x, नॉट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, 2 रेज टू x आएगा ना? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे आएगा e रेज टू माइनस 2 2 रेज टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, एंड x will be 0 1 2 3 and 100 तक। ओके, so is there any confusion up to here? Anybody? No, sir. No, sir. Now next, नो सर। yes, next देखते हैं। तो at least one means कौन सा केस आएगा और कौन सा नहीं आएगा? 0 और 1। 1 और 1 से ज्यादा। At least one means कम से कम 1, मतलब उससे भी ज्यादा 1 और 1। yes, very good, means 1 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए तो कौन सा केस नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा ना? 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा p ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 1। जब भी हम एटलीस्ट वर्ड आता है तब ग्रेटर इक्वल टू यूज करते हैं, एटमोस्ट आता है तो लेस और इक्वल टू यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ 1 माइनस इसमें पूरा 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट मींस e रेज टू माइनस 2 2 रेज टू 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, एंड यू विल गेट 0.8647। तो फर्स्ट वन में कोई डाउट किसी को भी? नो सर। Okay, next probability that exactly 7 bulbs, second one is the exactly 7, exactly 7 means equal to 7 हुआ? Yes, sir. यस सर। So probability of x is equal to 7, तो इसमें सीधा आप x की जगह पे 7 रिप्लेस कर दो, whatever we have that is our required probability. So is there any doubt in this example? बहुत सिंपल है ना? बाइनोमियल एंड पॉइजन तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है किससे कौन सा एग्जांपल किससे कर सकते हो। ओके, एनी डाउट? बाइनोमियल में ये यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। आप यहाँ पे क्यू निकाल दो, है ना? क्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? 1 माइनस पी माइनस 0. 1 माइनस 0.02, है ना? तो यहाँ पे 1 माइनस 0.02 करके आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। डन, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमारा लैम्बडा क्या है कि सिंपल हो जाता है, डिजिट आ जाता है, इसलिए हमारा जल्दी खत्म हो जाता है। वहां पे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा इससे भी छोटा आ सकता है ना? और ये थोड़ा फॉर्म जो है, यस, वो फॉर्म जो है उसमें थोड़ा आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। बाकी कर तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए तो उसको बोलते हैं ना लिमिटिंग सेंस। लिमिटिंग सेंस हम कब यूज करते हैं? जब ज्यादा हमारे पास डेटा हो तब, है ना? Yes or no? Yes, sir. Right. Okay. Next example. Okay, 2 ही example थे। तो is there any doubt in Poisson distribution? Anybody? No, sir. Okay. चलो next probability density function. It is known as PDF. उसको शॉर्ट में PDF भी बोलते हैं हम, है ना? तो probability density function, तो probability density function में क्या है कि उसको f of x तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो let f of x be a continuous function, then mean, अगर probability density function आपको दिया है तो उसका mean हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x into f of x dx,
ओके उसका वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x माइनस एक्स बार स्क्वायर, बट x बार इज योर मीन, जो भी मीन मिला है वो x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स dx करेंगे तो हमको वेरिएंस मिलेगा. सो दिस इज टू न्यू कॉन्सेप्ट विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जैसे हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं ना, ऐसे ही है. f of x of continuous random variable x is called probability density function if, वहां पर भी हमने लिखा था कि वो इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पर भी f of x ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x. नंबर 2, वो सभी का आप एडिशन करते थे तो 1 आता था. यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे उसका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of x dx, तो उसका इंटीग्रेशन शुड बी 1, वो 1 आएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. नंबर 3, इंटीग्रेशन a टू b मींस अगर कोई बीच का माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच का कोई अगर आपको फाइंड करना है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन b. सो इज देयर एनी डाउट इन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन? एनीबॉडी? नो सर. प्रोबेबिलिटी से ही ये डिफाइन किया गया है. वहां पे हम प्रोबेबिलिटी मींस कोई नंबर की बात करते थे, यहाँ पे हम फंक्शन की बात करते हैं, इसलिए उन्होंने नेम दिया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर. ओके, यस सर. thank you. Next example, the probability density function f of x of a continuous random variable x is defined by f of x is equal to a upon x cube 5 less or equal to x less or equal to 10 and 0 otherwise, means इसके अलावा जो भी इंटरवल होगा उसमें वो 0 है. then find the value of a. जो यहाँ पे हमको a दिया है ना, उसका वैल्यू हमको निकालना है. तो हमारे पास ये तीन में से कौन सी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी? एक्सियोम कौन सा यहाँ पे यूज कर सकते हैं? थर्ड करेंगे तो बेटा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना. यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू कहाँ दिया है? सेकंड कर सकते हैं. वेरी गुड, सेकंड कर सकते हैं ना, क्योंकि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स हमको 1 मिल रहा है. इसका आंसर हमारे पास है, तो सिर्फ यहाँ पे फंक्शन रिप्लेस करके देखते हैं क्या होता है. यस और नो एवरीबॉडी? यस सर. तो यहाँ पे वही यूज करेंगे. देखो हियर f of x is equal to a upon x cube 5 less or equal to x less or equal to 10. Since f of x is probability density function, यहाँ पे आपको दिया है, so minus infinity to infinity integration minus infinity to infinity f of x dx is equal to 1. That is our second axioms. So अब यहाँ पे मैं इसको 3 स्टेप में लिख सकता हूँ. कैसे? माइनस इंफिनिटी टू a to b and b to infinity. तो मेरा टोटल कवर हो गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. एवरीबॉडी? यस. है ना, इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे देखो माइनस इंफिनिटी टू a में तो वो क्या है? 0. फंक्शन खुद 0 है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू a 0 इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे a मीन्स यहाँ, ओके सॉरी a नहीं, यहाँ पे आपका लोअर लिमिट है 5, तो 5 तक चले जाते हैं. यहाँ 5 टू 10 yes a upon x cube dx plus 10 to infinity 0 into dx is equal to 1. yes or no? यस सर. तो ये दोनों तो 0 हो गए, तो हमको सिर्फ यही सॉल्व करना बाकी बचा. सो इंटीग्रेशन 5 to 10 a upon x cube dx is equal to 1. अब यहाँ पे मैं इसको फाइंड करूंगा 5 to 10 a upon x cube dx is equal to 1. तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो a तो उसके लिए कांस्टेंट है, तो x रेज़ टू -3 का क्या हो जाएगा? x रेज़ टू -3 प्लस 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 और लिमिट मेरा है 5 to 10. यस और नो? यस सर. सो यहाँ पे x रेज़ टू -2 डिवाइड बाय -2, यहाँ पे 5 to 10 इक्वल टू 1. अब इसको तो इजी है सॉल्व करना. क्या आएगा बताओ? चलो a पहले अगर मैं 10 रिप्लेस करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25 है ना. तो और यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है और इक्वल टू 1 रखना है, तो इसमें से जो भी आएगा वो आपका a मिलेगा और a हो जाएगा 200/3.
Yes or no? Everybody understand? Yes, sir. है ना? तो इसको a फाइंड करने में कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. है ना? No, ये sir. बहुत सिंपल है ये भी. ओके चलो नेक्स्ट. अ फंक्शन f of x इज डिफाइंड एज फॉलोज. दैट मींस f of x हमको डिफाइन करके दिया है सो दैट इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अब इसको देखना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं. सो दैट मींस आपको दिखाना है. तो दिखाने के लिए क्या करना है हमको? जो आगे वाले जो है ये तीनों ही तीनों चेक करना है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो Yes, यहाँ sir. यस यहाँ पे हम देखते हैं. चलो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो ग्रेटर इक्वल टू f of x शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0. तो ये वेरीफाई है कि नहीं ग्रेटर इक्वल टू 0? Yes, sir. है ना? देखो ये दोनों तो 0 ही है. दैट मींस वो इक्वल टू वाले केस में आ जाएंगे. अब इसके लिए अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? 2 into 2 4 4 plus 3 7 7 by 18 वो पॉजिटिव हुआ ना? Yes, sir. यहाँ पर 4 रिप्लेस करता हूं तो 4 into 2 8 8 plus 3 11 11 by 18 वो भी पॉजिटिव रहा. कहीं पर भी वो नेगेटिव नहीं बन रहा है. दैट मींस इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0. तो वो 1 क्लियर हो गया. अब 2 के लिए मुझे क्या देखना है? जो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of x dx है वो मेरा 1 होना चाहिए. यस और नो? Yes, sir. तो देखते हैं. चलो तो यहाँ पे देखो इफ f of x इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देन वही सीधा उन्होंने ले लिया है. तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये मेरा फर्स्ट है. तो यहाँ पे देखो अब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में मुझे 3 में डिवाइड करना है जैसे आगे किए थे. इसे माइनस इंफिनिटी टू 2 प्लस 2 टू 4 प्लस 4 टू इंफिनिटी. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? गॉट इट? पता चला? Yes, sir. यस थैंक यू. dx इज इक्वल टू 1. यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ लेकिन वो 1 लाना है हमको. ओके तो यहाँ पे इसका हम 1 आंसर लाएंगे. तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया. गुड. ये भी 0 हो गया. अब इसके लिए सिर्फ सोचना है ना? तो यहाँ पे 2 to 4 2x plus 3 डिवाइड बाई 18 dx. तो 1 by 18. अब 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो 2x square by 2 आएगा. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. तो 2 2 कैंसिल करके मैंने यहाँ पे x स्क्वायर लिखा प्लस 3 into x. तो यहाँ पे 3x 2 to 4 तो मेरा लिमिट है. अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करके 1 आ रहा है कि नहीं चेक कर लो. चलो ये तो आप कर सकते हो इजीली. आप देखो 16 plus 12 minus 4 minus 6. तो यहाँ पे हो जा रहा है -10. तो यहाँ पे 2 बचेगा. सो 16 plus 2 18 18 डिवाइड बाई 18 1 आ गया. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. एंड नंबर 3 जो था वो क्या था हमारा? a to b f of x dx इज इक्वल टू हम उसको लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन b. है ना? और वो प्रोबेबिलिटी के लिए तो हम जानते ही है ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए. नॉन मींस नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो f of x ग्रेटर देन 0 बिकॉज फॉर 2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 4. तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सर एक बार रिपीट करो ना. ओके Yes, sir. यस. थर्ड में क्या करना था हमको? सिर्फ देखना था कि a to b f of x dx को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं. वो तो हमने ऑलरेडी लिख दिया. देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वो स्टेप को कंप्लीट कर दिया है. कैन आई राइट इन दिस वे 2 लेस देन x लेस देन 4? लिख सकता हूँ कि नहीं इसको? Yes, sir. है ना? तो ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इसका आंसर हमारे पास अभी आया 18 आया था ना. तो इट इज ग्रेटर देन 0. अब ये ग्रेटर देन 0 है. दैट मींस प्रोबेबिलिटी है. उसको हम प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Okay, that means third condition is also satisfied. So we can say that it is probability density function. Is there any confusion, any question in this example? Anybody? No, sir. What about others? Please confirm yourself.
नो सर। यस सर। नो नो सर। ओके, थैंक यू। और ये होमवर्क में दे दूं, कर पाएंगे आप, है ना? A continuous random variable has probability density function f of x is equal to k e raised to minus x by 5, 0, x greater equal to 0 के लिए ये है and elsewhere के लिए 0 है, then find the value of k। तो ये हमारा फर्स्ट वन के जैसा हो गया, तो आप इसके लिए सॉल्व कर देना, कर पाएंगे? चलो जल्दी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 का यूज करेंगे, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसा बोल दिया है तो उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू आपको एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या हुआ, 0 टू इन्फिनिटी हुआ कि नहीं? यस सर। और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आपके पास है k e raised to minus x by 5 dx is equal to 1। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया है, तो इसके लिए यस यस बेटा, आवा। ओके। सो k e raised to minus x by 5 के लिए आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो 0 to infinity k e raised to minus x by 5 dx इक्वल टू 1, तो यहाँ पे k तो बाहर चला गया, e raised to minus x by 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to minus x by 5 डिवाइड बाय minus 1 by 4, ये सही है या गलत है? इज इट ट्रू? यस सर। यस सर। और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। अब इसमें पहले इन्फिनिटी रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस 1 बाय 5 1 बाय 1 बाय 5 है, और यहाँ पे मैं इन्फिनिटी रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी मिला, मुझे माइनस करके 0 करना है, तो ई रेज टू 0 मिला। तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 5 को मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस 5 बोल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, थर्ड में है इसीलिए। तो माइनस 5 ये हो जाएगा मेरा 0 और ये हो जाएगा मेरा माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पे आपके पास 5 आया, के तो ऑलरेडी आपके पास था, है ना, वो तो बाहर ही था, तो एवरीवेयर के। ओके, सो माइनस माइनस प्लस 5 के इज इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वल टू में मेरे पास 1 है, तो के इज इक्वल टू 1 by 5। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस एग्जांपल, एनीबॉडी? नो सर। सिंपल था। ओके, next No doubt. yes, thank you। next distribution is exponential distribution। okay, अब exponential distribution है, normal distribution जो है ना, वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, और बाकी के दोनों हमने जो दिए देखे वो थे डिस्क्रीट डेटा के लिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे देखो, द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्ट्स एज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन मीन्स उसका डेंसिटी फंक्शन अगर इस तरीके से डिफाइन करते हैं, देन इट इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैसे, तो एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 upon beta e raised to minus x by beta, x greater than 0 and beta greater than 0 and 0 elsewhere मीन्स बाकी ये दोनों के अलावा जो भी होगा इंटरवल वहां पे वो 0 हो जाएगा। सो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसके पास है वेरिएबल x के पास, then we can say that it is the exponential distribution। Do you understand? यस सर। है ना, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी, यस, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो x ऑफ x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए तो यही करते हैं ना, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स एक्स dx हो जाएगा कि नहीं, एवरीबॉडी? यस सर। है ना, पता चला प्रोबेबिलिटी इसके लिए कैसे फाइंड करना है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी? सो द फार्मूला इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स एक्स dx। आपको ये फंक्शन में ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है, देन इट बिकम्स द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर। ओके, नोट यूनिट ऑफ बीटा एंड एक्स मस्ट बी सेम, मीन्स एक्स एंड बीटा जब भी आप कंसीडर साथ में करते हो तो वो दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, मीन्स आवर्स है तो आवर्स में होने चाहिए, वो मिनट में है तो मिनट में होने चाहिए। ओके, अगर वो डिग्री सेल्सियस में है तो सेल्सियस में होने चाहिए, है ना, इस तरीके से।
डन, अंडरस्टैंड, नोट, पता चला सेम यूनिट में आपको कंसीडर करना है, दैट इज द कंडीशन। ओके स्टूडेंट, okay, first example you can see in a construction site, okay, construction site दिया है 3 lorries unload materials per hour, means 3 lorries है आपके पास, वो मटेरियल अनलोड कर रहा है, मीन्स उसमें भरा हुआ मटेरियल निकाल रहा है पर आवर में, ऑन एन एवरेज, मीन्स वो निकाल रहा है। व्हाट इज द probability that the time between arrivals of successive lorries will be number 1 at least 30 minutes and number 2 less than 30 minutes। तो यहां कहीं पर भी आपको सक्सेस रेट नहीं दिया है, दिया है कहीं पे? नो सर। नहीं, that means we cannot use the binomial and Poisson distribution, okay everybody, okay, understand? Yes, sir. Yes, sir. अब ये एग्जांपल मुझे एक्सपोनेंशियल से करना है, तो मैंने यहाँ पे लिया लेट x रिप्रेजेंट एन एक्सपोनेंशियल वेरिएबल, मींस जो हमने अभी अभी यूज किया है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट द टाइम बिटवीन अराइवल ऑफ सक्सेसिव लॉरीज इक्वल टू 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स को मुझे आवर्स में ले जाना है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो बीटा कैसे डिफाइन करना है, तो बीटा यहाँ पे 3 है। कितनी लॉरीज थी? 3 लॉरीज के लिए डिस्कस कर रहे हैं ना। डन एवरीबडी? यस सर। ओके, तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 3 हो गया, तो यहाँ पे 1 बीटा जैसे फॉर्म आता है ना, ऐसे ही आपको उसको 30 मिनट्स दिया है तो एसी फॉर्म में ले जाना है, दैट मीन्स p/q फॉर्म है तो p/q में ले जाना है, दैट मीन्स 1/2 एंड आवर कर दिया हमने। और यहाँ पर 3 लॉरीज जो है उसके लिए भी आवर्स ही दिया था, तो हमने उसको सेम यूनिट में ट्रांसफर कर दिया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बीटा एंड x, ओके, तो सिंपल है, तो बीटा एंड x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1/2 टू इंफिनिटी हो गया, अंडरस्टैंड? इंटीग्रेशन में देखो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी की जगह पे एटलीस्ट 30 मिनट्स, कितना करना है? एटलीस्ट 30 मिनट्स, दैट मीन्स 1/2 टू इंफिनिटी। अंडरस्टैंड? लिमिट कैसे आया पता चला सबको? नो सर, रिपीट करो ना। यस, नहीं पता चला। ओके चलो, यहाँ पे देखो एटलीस्ट 30 मिनट्स का मीनिंग क्या होता है? 30 एंड 30 से ज्यादा, Yes, sir. है ना। ओके, अब 30 मिनट्स है तो 30 मिनट्स को मैं आवर्स में लिखना चाहता हूं, तो क्या हुआ? 1/2 हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू 1/2 एंड प्लस 1/2 टू इंफिनिटी में मुझे उसको लिखना है। अब माइनस इंफिनिटी टू 1/2 के लिए तो मुझे बोला ही नहीं गया है, दैट मीन्स अदरवाइज वाला केस हुआ, दैट मीन्स 0 हो गया। डन एवरीबॉडी, अंडरस्टैंड अप टू हियर? यस सर। ओके, अब प्लस 1/2 टू इंफिनिटी, उसमें मुझे तो ये लेना है fx(x), तो fx(x) मेरा क्या है तो आपको पता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहाँ पे इसी को एक्सटेंड कर दे तो 1/बीटा e⁻x/बीटा, वो मुझे लेना है dx। तो यहाँ पे 1/बीटा मीन्स 1/3, e⁻, क्या था? -x/बीटा, दैट मीन्स -x/3, है ना, एंड dx। अब ये मेरा हो गया टोटल, लेकिन x मुझे 1/2 रिप्लेस करना। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, उसमें मेरा 1/2 टू इंफिनिटी लिमिट आएगा, इट इज अवर x, मींस वो 1/2 टू इंफिनिटी तक है, तब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। नाउ डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes. और इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, आपको आता है ना, वो मैं नहीं करवाऊंगा, आप देख लेना। 1/3 है, सिर्फ बता देता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल है इसलिए। क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन?
तो यहाँ पे देखो 1/3 बाहर चला गया, e रेज टू माइनस एक्स बाई 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू माइनस एक्स बाई 3 डिवाइड बाय माइनस 1/3 एंड लिमिट आपको लगाना है 1/2 टू इन्फिनिटी। और फर्स्ट लिमिट पे तो वो जीरो ही होगा क्योंकि e रेज टू माइनस इन्फिनिटी, सिर्फ आपको 1/2 वाला सब्स्टिट्यूट करना बाकी रहेगा। सो डू यू अंडरस्टैंड अप टू हियर? एनीबॉडी? Any doubt in Yes, first case? Any doubt, beta? No, sir. Okay. No, Second, thank you. Second, less than 10 minutes. Less than 10 minutes के लिए probability आपको find करना है। तो क्या होगा उसके लिए? less than 10 minutes उसका symbol ये होगा x less or equal to, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब 10 minutes को मुझे hours में ले जाना है, तो what is the hours for 10 minutes? 1/6 hour, Yes, sir. है ना? सिंपल 10/60 करना है आपको, कुछ नहीं करना है, दैट मीन्स 1/6। तो 1/6 एन आवर। अब 1/6 के लिए मुझे फाइंड करना है, तो 0 to 1/6, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव होता है? No, sir. नो, तो No, वो तो केस ऑटोमेटिक नहीं आएगा, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब 0 टू यहाँ पे आपको कहां तक लेना है? 1/6 मीन्स लेस देन, और फिर 1/6 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ वो 0 हो गया, यहाँ वो 0 हो गया, सिर्फ यहाँ पे मिलेगा हमको। Yes, sir. तो और वो Yes, हमारा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट मीन्स 1/3 e रेज टू माइनस एक्स बाई 3 dx वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, यही इंटीग्रेशन, सिर्फ लिमिट चेंज हो गया, और उसका आंसर अगर आप फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 0.0540। So do you understand this example, everybody? Exponential distribution. Yes, sir. What about others? Please. सर केस 1 में तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 आएगा ना? हाँ, यस यस यस, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू आएगा। वेरी गुड, थैंक यू। ग्रेटर इक्वल टू आएगा, एग्जैक्टली 2 नहीं है ना, एटलीस्ट बोला है ग्रेटर इक्वल टू 1/2। ओके, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। प्लीज everybody please confirm जल्दी से। ओके, No, sir. ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में थोड़ा वेरिएशन लाया उन्होंने, आपको दे दिया फंक्शन, ओके, और फिर उसमें से हमको निकालना है। देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द टाइम दैट अ पर्सन स्पीक्स ओवर फोन इन मिनट्स। आप जैसे करते हैं, मैं जैसे करता हूँ, वैसे हम फोन पे बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम दिया गया है कि वो कितनी बात कर सकता है, कितना टाइम वो कर सकता है, उस हिसाब से। तो यहाँ पे उसका फंक्शन जो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको दिया है 1/6 e रेज़ टू माइनस एक्स बाई 6। 0 जब 1/6 e रेज़ टू माइनस एक्स बाई 6 कब है? जब x ग्रेटर देन 0 है, दैट इज अवर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यहाँ पे 0 है, दैट इज द एल्सवायर। ओके, अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं वो देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल टॉक फॉर, फर्स्ट वन है मोर देन 8। मोर देन 8 मिनट्स मींस मुझे क्या फाइंड करना है? ग्रेटर इक्वल टू 8 हुआ। Yes, sir. लेस देन 4 मींस लेस और इक्वल टू 4 हुआ। Understand? Yes. Yes, sir. And between 4 to 8, that means 4 less or equal to x less or equal to 8 हुआ। Yes. ओके, अब सिंपली आपको इंटीग्रेशन में ये थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल टॉक फॉर मोर देन 8 मिनट्स। तो आपको पहले तो वो पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू x के लिए एक्सपोनेंशियल यहाँ पे फंक्शन दिया है, तो उसके लिए हमारी फॉर्मूला क्या थी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एक्स dx था, है ना? तो यहाँ पे आपको ये रिप्लेस करना है, और जो भी आपका इंटरवल है वो आपको पहले डिसाइड करना है। तो ग्रेटर इक्वल टू 8 मींस कौन सा इंटरवल आएगा? 8 to infinity. 8 to infinity। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 8 to infinity। अब यहाँ पे देखो मिनट्स में है ना? तो मिनट्स में मुझे कन्वर्ट करने के लिए बीटा मेरा क्या हो जाएगा? 1/6 होगा।
ओके, डन। यस सर। ओके, तो 1/6 e रेज टू माइनस एक्स बाई 6 dx हो जाएगा, और उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.2635। अब कभी कभी एग्जाम्पल में आपको बीटा दे भी दिया होगा, है ना, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा वो भी देख लेना आप बीटा के लिए। ओके, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल टॉक फॉर लेस देन 4 मिनट्स। उसमें आपको क्या करना है, लेस देन 4 मिनट्स मींस माइनस इन्फिनिटी टू 0 वाला केस, तो उसमें 0 ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब बाकी बचा कौन सा, 0 टू इंफिनिटी वाला। अब 0 टू इंफिनिटी में आपके पास बोल दिया है लेस देन 4, दैट मींस 0 टू 4 वाला ही बाकी रहेगा ना, नॉन जीरो वाला। डन। ओके, तो यहाँ पे देखो 1/6 e raised to minus x by 6 dx, तो यहाँ पे 0.4866। so any problem in 1 and 2, anybody? नो सर। सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, और सभी का इंटीग्रेशन वही आएगा, e raised to ax upon a वाला ही आएगा। a आपका सिर्फ चेंज होता जाएगा, दूसरा कुछ है ही नहीं है एग्जांपल में, और लिमिट आपको जो भी दिया है वो स्मॉल a टू स्मॉल b, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट है 4 to 8 मिनट्स कितनी बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल टॉक बिटवीन 4 and 8 मिनट्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 4 to 8 हो जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन जो दिया है वो तो एज इट इज रखना है dx, उसको सॉल्व करना है 8 के लिए और 4 के लिए, देन you can find your required probability. So any doubt, any question in this example? इसमें बीटा दे ही दिया है। Any problem? Anybody? नो सर। Okay. Next, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। इन अ कंस्ट्रक्शन साइट, फिर से वही का वही आया, वहां पे कितना था देखो 3 लॉरीज था, यहाँ पे कितना आ गया 4 लॉरीज आ गया, वही का वही है कि नहीं? तो आप कर लेंगे, ये होमवर्क में दे दूं? यस सर। है ना, सेम एग्जांपल 4 है तो 1/4 हो जाएगा बीटा हमारा, और यहाँ पे जो फाइंड करने के लिए बोला एटलीस्ट 20 मिनट्स, 20 मिनट्स को अगर आप आवर्स में ले जाएंगे तो 1/3 होगा, तो यहाँ पे 1/3 हुआ, और यहाँ पे लेस देन 20 मिनट्स है वो भी 1/3 आएगा, तो यहाँ पे आपको x लेस और इक्वल टू 1/3 फाइंड करना है एटलीस्ट। ओके, यहाँ पे एटलीस्ट मींस ग्रेटर इक्वल टू 1/3 आएगा, फिर से गलती हो गया, x ग्रेटर इक्वल टू 1/3 आएगा, तो लिमिट सही है 1/3 टू इंफिनिटी। सो कर पाएंगे? इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जांपल, एनीबॉडी? नो सर। और ये फिर से सेम एग्जांपल है, थोड़ा वेरिएशन करके दिया है, या वही का वही है, नहीं थोड़ा वेरिएशन करके दिया है। देखो वही का वही, पर्सन स्पीक ओवर अ फोन, फंक्शन आपको दे दिया है 1/7 e raised to minus x by 7, मोर देन 2 मिनट्स दैट मींस ग्रेटर इक्वल टू 2 फाइंड करना है, लेस देन 4 मिनट्स दैट मींस लेस और इक्वल टू 4 फाइंड करना है, एंड यहाँ पे बिटवीन 2 to 4 दैट मींस 2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 4 के लिए करना है। जैसे हमने सेकंड एग्जांपल किया सेम तरीके से यहाँ पे 1, 2 एंड 3, so इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल, सिर्फ यहाँ पे बीटा की वैल्यू वेरिएशन में है देखो, और यहाँ पे मिनट्स आपके वेरिएशन है। इस तरीके से हम इनफाइनाइट मैनी एग्जांपल्स बना सकते हैं कि नहीं? आप खुद भी बना सकते हो, यस और नो? यस सर। यस सर। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? सेम है इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे है ना, अगर आपको डाउट है तो यहीं पे हूं मैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। एनी डाउट बेटा? नो सर। नो डाउट सर। ओके, No, सो sir, no doubt. ओके, सो दिस इज अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। मैंने आपको बोला था 1.5 आवर में लेक्चर लूंगा, लेकिन यहाँ पे 1 आवर में ही यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन टुडेज सेशन, एनीबॉडी? नो सर। नो सर। एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म योरसेल्फ। यस नो सर। सर। नो डाउट। नो सर। नो सर। ओके,